Hello friends, welcome to study panel. This is Devendra Sijala from Kendriya Vidyalaya Drangadra. In today's video, we shall start our second chapter of EVS, that is a snake charmer's story. We'll read out, I am Aryanath. I can do something special, which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. See, the people who makes snake dance are known as Kalbelia. Here you can see the instrument is known as bean. Most of the saperas are using this instrument to make snake to dance. Now here see this man is playing the bean and this lady is dancing. These people are known as Kalbelias. My grandfather Roshan Nathji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his stories in his own words. Now we will listen to Roshan Nath ji, a grandfather of Aryanath, about his life. Now see, here is a Rangoli pattern, a Rangoli type design. This is made by the drawing of snake. Now this pattern is known as Nag Muphan. Designs of these kind are used in Rangoli, embroidery and as wall decoration in Saurashtra, Gujarat and South India. See, these designs, these Rangoli patterns are used in certain parts of India, that is Saurashtra, Gujarat and in South India. These patterns, these Rangolis are known as Nag Guphan. नाग गुफन का मतलब क्या होता है? मतलब एक दूसरे में जब जो है सांप जो है पिरोकर उसको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वाला सांप जो है और ये ब्लू वाला सांप एक दूसरे को इंटरचेक कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पैटर्न बनाई जाती है सांप को यूज करके, उसको नाग गुफन कहते हैं। Now we'll identify these three places: Saurashtra, Gujarat and South India. Saurashtra is a part of Gujarat. Now let us see. See, this is a map of Gujarat. In this is yellow shaded area is known as Saurashtra. Now we are in Gujarat. You need to identify and you need to answer in the comment box. Are you in Saurashtra or you are not in Saurashtra? Means the place you are residing is in the region of Saurashtra or not in the region of Saurashtra. See, this whole area is known as Gujarat. ये पूरा जो एरिया है वो गुजरात ही कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इतना सा जो एरिया है गुजरात का उसको सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि क्या आप सौराष्ट्र से है या सौराष्ट्र से नहीं है। अगर सौराष्ट्र से है तो सौराष्ट्र में कौन सी जगह से है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द South India. See, these states are known as South Indian states. Here also Nag Bhupan is very popular. See, we will identify the states. Karnataka. This red one shaded shape is of Karnataka. Goa. This tiny dot is known as Goa. Telangana. This one is Telangana. Andhra Pradesh. This coastal state is known as Andhra Pradesh. Kerala, this greenish part is known as Kerala. This one, yellowish part is known as Tamil Nadu, and here you can see a very tiny, very small dot of orange color is known as Puducherry. Okay, so these many states are in South India. Here also Nag Bhupan is very popular. Now we'll move on. Dadaji remembers, from the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas.
Snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. See, here you can see, ये जो सपेरा है वो गांव-गांव घूमते हैं, ठीक है ना। अब गांव-गांव घूमते ये लोग क्या करते हैं, किसी भी एक विलेज में रुकते हैं, वहां पर ये क्राउड भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना। पहले तो टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब था नहीं, स्मार्टफोन्स थे नहीं, लोग तो मतलब जो है वो फ्री रहते थे। तो जब भी ऐसा कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई सपेरा आता था तो वो लोग जो है यहाँ इकट्ठे हो जाते थे। फिर ये जो सपेरा है अपनी बीन बजाते थे और अपने बास्केट के अंदर से सांप निकालकर सबको दिखाते थे और बीन के साथ जो है सांप डांस करता था। Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. फिर शो खत्म होने के बाद भी लोग उनके पास रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सपेरा के पास एक टिन बॉक्स भी रहता है जिसमें अलग अलग बहुत सारी दवाइयाँ रहती है और वो सारी जो दवाइयाँ है वो लोग जो है फॉरेस्ट यानी जंगल से जो है प्लांट से कलेक्ट करके लेकर आते हैं और ये सारी चीजें जो है इन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी। और उस समय अस्पताल, डॉक्टर्स इतने इजीली अवेलेबल होते थे नहीं, मतलब गांव में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, आपको दूर शहर जाना पड़ता था। हाँ, अगर आप ये सारी चीजें लोगों को हेल्प करोगे मेडिसिन वगैरह देकर तो इन रिटर्न लोग आपको पैसे देंगे या तो जो गेहूं वगैरह जो है, चावल है, वो सारी चीजें इनको अनाज के दाने वगैरह जो है वो खाने के लिए देंगे। Sometimes I was called to places where someone had been beaten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had beaten the person. I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but most of the snakes are not poisonous. See, ज़्यादातर snakes है ना वो पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनको गांव में दूर दूर से बुलाया जाता है कि आप आ जाओ, किसी को सांप काटा है तो हेल्प करने के लिए आ जाओ, उसको दवाई देने के लिए आ जाओ, ठीक है ना। अब देखो वो मूवी वगैरह में दिखाता है जिसको सांप काटा है उसके मतलब अगर पाँव में काटा है, हाथ में काटा है तो वो क्या है उसको अपने मुंह से जहर निकाल के बाहर थूकेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो सब मूवी में दिखाया जाता है, ऐसा करने से कभी जहर निकलता है नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो है हेल्प करने के लिए टाइम पर कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते क्योंकि बहुत जहरीले सांप जो होते हैं उसके काटने से तुरंत ही डेथ हो जाती है। Sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. बहुत बार फार्मर्स जो होते हैं वो मतलब उनकी हेल्प लेने के लिए आते हैं कि सांप आया, तो जो ये सपेरा वहां पर जाके जाते हैं और सांप को पकड़ते हैं। After all, catching snake was something I had been doing since my childhood. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. See, अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि मतलब वो तो बचपन में ही उन्होंने जो है सांप पकड़ना सीख लिया था, है ना। और वो दिन इतने अच्छे थे, तब जो लोग होते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए तब टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, जो ये सपेरा गांव में आते थे, फिर कोई और जो वो मतलब रस्सी बांध के चलते हैं उसके ऊपर इंसान, वैसे लोग आते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बड़े होते गए उनके पिताजी ने उनको ये भी बताया कि जो जहरीले दांत होते हैं सांप के उसको कैसे निकाला जाता है ना। और वो जहरीले दांत को क्या बोलते हैं, फैंग्स।
He also taught me how to close the tube of poison. जो सांप का जो जहर निकलता है, देखो ये जो जहर वाली जो ये ट्यूब है, ठीक है ना, यहां से देखो ये जा रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये उसके दांत है, ठीक है ना, और ये दांत जो है किसी भी इंसान के शरीर में उसको बाइट करता है, यानी और ये इससे यहां से जहर, देखो यहां पर देखो ये जहर निकल रहा है और जहर उसके अंदर डाल देता है और उस इंसान के अंदर फिर जहर इसी तरह से चला जाता है. Yes. Now we need to answer some questions. Think and tell. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? बहुत बार देखा है, लेकिन आजकल बहुत कम दिखते हैं ये लोग, कभी कभार दिख जाते हैं, है ना, गांव में दिख जाते हैं. Yes. Have you ever seen a snake? Where? Yes, I have seen snake charmers playing a bean. I have seen them in a fair. मेले वगैरह में मिल जाते हैं, बाकी तो आजकल देखने को मिलते हैं नहीं. Were you scared by it? Why? Of course. Yes, क्या आप उससे डरे थे? Yes, I was scared by it. I have heard that snakes are poisonous. सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, इसीलिए उसको जो सब लोग हैं उससे डरते हैं. Do you think all snakes are poisonous? I don't think so. No, I don't think so. See, हम लोग ये मान के चलते हैं कि सभी सांप जो है वो जहरीले होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. सभी सांप जो है वो जहरीले होते हैं नहीं. In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? हमने chapter 1 में देखा. See, if you have not still seen the chapter 1, you can find link in the description box and watch that video also, that what is the super sense of a snake. Snakes cannot hear the bean, they dance when the bean moves. वो सुन ही नहीं पाते हैं. वो तो क्या है कि वो उनके सामने कोई हिला रहा है, अब अगर आप लकड़ी भी मुंह में डाल के हिलाओगे तो उसको भी देख के वो जो है डांस करेगा, ठीक है ना. आई थिंक ये शायद बहुत कम लोगों को पता था. यस. व्हाट कैन वी डू? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. देखो, आर्यनाथ के पापा जो है, अभी हम किसको सुन रहे हैं? हम जो सुन रहे हैं वो आर्यनाथ के दादाजी रोशननाथ जी को सुन रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जब आर्यनाथ के पिता भी जो है छोटे, मतलब बहुत छोटी एज में उसके पिताजी के साथ ट्रैवल करते थे, और वो भी उन्होंने भी बीन बजाना सीख लिया था देख कर. देखो, घर में बच्चा जो है ना वो देख के बहुत कुछ सीखता है ना. अब छोटे बच्चे को कोई, मतलब आपके घर में कोई गुजराती लोग है, ठीक है ना, तो उसको कोई गुजराती सिखाता है क्या? अगर आप मराठी बैकग्राउंड में है तो उस बच्चे को मराठी कोई सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखाता. लेकिन वो बच्चा देख देख के, सुन सुन के सारी चीजें सीख जाता है. तो यहाँ पर भी जो आर्यनाथ के पापा थे उनको भी किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन वो देख देख के है बीन बजाना सीख गए. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब गवर्नमेंट ने जो एक लॉ बना दिया है, कानून बना दिया है कि भाई वाइल्ड एनिमल्स को कोई पकड़ नहीं सकता और उसको रख नहीं सकता. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. क्यों लॉ बनाया है? क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो जानवरों को मार देते हैं और उनकी स्किन जो है, उनकी चमड़ी जो है बहुत महंगी बेचते हैं. So they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? अब सरकार ने तो कानून बना दिया कि कोई, मतलब जो है वाइल्ड एनिमल्स नहीं रख सकता. अब ये लोग तो सांप रखते थे, तो अब कानून के हिसाब से तो इनको रखना नहीं चाहिए. अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग फिर क्या खाएंगे, क्योंकि इनका जीवन निर्वाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मदारी जैसा काम था, मतलब सपेरे जैसा काम था, जो गांव गांव घूमते थे और सबका एंटरटेनमेंट करते थे, इन्हीं से इनका चलता था. अब सरकार ने तो इन्हों मना कर दिया कि आप सांप रख ही नहीं सकते, तो ये लोग अब मतलब है अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन. हमने कभी सांप को नहीं मारा है, ना ही उसकी स्किन कभी बेची है. पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस. लोग ये कहते हैं कि सांप को ये लोग अच्छे से रखते भी नहीं है, बहुत गंदी कंडीशन में रखते हैं. इफ वी वांटेड, वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, बट वी वुड नेवर डू दैट. स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स.
that we pass on from one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of snake. देखो ये लोग तो है, मतलब ये इनका एक खजाना है, ठीक है, ज्ञान का खजाना है, ये लोग इसको बेचेंगे नहीं, उसको सांप को मारेंगे नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, जब उनकी बेटियों की शादी वगैरह होती है तब ये लोग गिफ्ट करते हैं स्नेक को, ठीक है ना। और इनका जो डांस है, कालबेलिया डांस जो है, उनमें भी बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो सांप जैसे है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योरसेल्फ। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। You and your cousins can form a pin party and entertain people। देखो अब आर्यनाथ को तो क्या है, वो सपेरे का काम नहीं कर सकता। अब आपको क्या करना है, एक बीन पार्टी, कुछ अलग चीज में अपना करियर बनाना होगा, ठीक है। तो अब आर्यनाथ को है ना एक बीन पार्टी बनानी है, मतलब जिसमें वो और उसके कजिन्स मिलकर लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे। सी हाउ द बीन पार्टी, सी दिस इज अ बीन पार्टी, you can see here musical instruments used in bean party: bean, tumba, khanjri and dol. See, these four instruments are used by bean party except dol. All other three instruments are made from ड्राइड गॉड लौकी। देखो जो सूखी हुई लौकी होती है ना, सिर्फ ढोल को छोड़ के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो किससे बनाए जाते हैं, ड्राइड गॉड यानी लौकी से बनाए जाते हैं। सी इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी, सी दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज तुम्बा, दिस इज खंजरी एंड दिस इज ढोल। ये जो है किससे बनाए जाते हैं, ड्राइड गॉड से बनाए जाते हैं।